So let's begin with this basic feature about the triangles. अभी triangles हम लोग को पता है कि हाँ भाई त्रिकोण है. So you have three vertices यानी कि तीन points हैं उसके और वो तीनों points को connect करते हैं three lines and hence they form the three edges or the three sides of the triangle. यानी कि ले लो इधर A B C. So A B C they are the three vertices and उन तीनों को जब connect किया जाता है then you obtain a figure which is your triangle. Now how are the sides and angles related to the concept of triangles? अभी ये चीज क्या है? Okay, now we know that yes it is very basic. अभी सुनने में लग रहा है कि भाई triangles के बारे में और क्या पता होगा? तुमको हम लोगों से क्या ज्यादा पता होगा? नहीं भाई, बेसिक ही है, बट ये बेसिक कैसे इस चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट ओवर हियर. तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं. लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय मार्कर. इफ ऑल साइड्स आर अनइक्वल इन द लेंथ्स देन ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो अनइक्वल. इसका मतलब है, मान लीजिए ये वाले ट्राइंगल में ए बी एंड सी, मान लीजिए दिस इज 5 सेंटीमीटर, this is 3 centimeter and this turns out to be 4 centimeter. Now in this case if you observe clearly सारे के सारे जो sides हैं ये sides different हैं. Now if these sides are different it means from this statement that the angles will also be different from each other. वहीं पे सेकेंड पॉइंट में एक बार आ जाओ, दैट इज इफ ऑल एंगल्स आर अनइक्वल द साइड्स आर ऑल्सो अनइक्वल. सो दिस इज, यू कैन से दिस इज द कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट यू आर गेटिंग ओवर हियर. नेक्स्ट, द ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट. मतलब मान लो अभी अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि विच साइड अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट. अभी फिगर के ऊपर मत जाओ, शक्ल पे मत जाओ इसके, जस्ट कम टू द बेसिक. अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट द ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट. इसका मतलब दैट ओवर हियर 5 सेंटीमीटर इज देयर, 4 सेंटीमीटर इज देयर, 3 सेंटीमीटर है. अभी इन तीनों में से 5 सेंटीमीटर इज द लार्जेस्ट वन आउट ऑफ ऑल दिस 3. सो व्हाट डज इट मीन दैट दिस पर्टिकुलर एंगल side 5 centimeter is opposite to angle ACB. So you can say that ACB is the largest angle out of all the three, and simultaneously you can also draw the conclusion that the side opposite to this particular angle, which is side AB, is also the largest, which is 5 centimeter. तो ऐसे कोई भी ट्राइंगल अगर दिया गया होगा, from there you can obtain this sort of information. Now if any two, coming to this point, if any two sides are also equal, the angles opposite to them are also equal. इसका मतलब अगर दो triangles मैंने यहाँ पे draw किया हुआ है, you can clearly see over here A B C and D E F. In case of these two triangles, अगर देख लो यहाँ पे A B and A C, if AB is equal to AC in this first triangle, then it shows that the angle over here, these two are also same. क्यों? क्योंकि AC, the side AC is actually opposite to angle B, while side AB is opposite to angle C. Hence we can draw the conclusion that if AB is equal to AC, then angle ABC is equal to angle ACB. And exactly यहाँ पे converse भी उसका apply होता है, that if two angles are equal, the sides opposite to them are also equal. मतलब मान लो कि अगर दिया गया है angle ABC is equal to angle ACB, clearly from there you can derive that AB is equal to AC. And अगर दिया गया होगा दूसरे ये वाले triangle का example ले लो, if they have given that DE is equal to DF, then we can clearly derive the conclusion from there that this angle is equal to this angle, that is DEF is equal to DFE. But अगर ऐसा कुछ condition आया that if all the sides are equal, then all the angles are also equal, and this is exactly the case of your equilateral triangle. तो एक equilateral triangle को अगर हम लोग consider करें यहाँ पे, then you can clearly say कि यहाँ पे अगर ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर का आ जाता है, then you can say that all the angles will also be equal. और एक equilateral triangle में what is the value of each and every angle? It is 60 degree. ठीक? So this is about how the sides and angles of a particular triangle, they are related to each other. अभी next चलते हैं हम लोग the concept of median.
जी हाँ, अभी जब हम लोग मीडियन के बारे में देखते हैं, सो फर्स्ट यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीडियन। अभी जब हम लोगों ने यहाँ पे मीडियन ड्रॉ किया है तो उसका थोड़ा लेबलिंग पहले कर देते हैं। सो लेट दिस बी ए, बी एंड सी। दिस इज अ ट्राइंगल विथ ए, बी एंड सी गिवन एज द वर्टिसेस। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो दैट व्हाट इज द मीडियन। मीडियन यहाँ पे क्लियरली बताया गया है दैट इट इज द टू मीडियन करेस्पॉन्डिंग टू एनी साइड। कोई भी साइड को करेस्पॉन्ड करते हुए एक मीडियन अगर हम लोग उस साइड पे ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, देन इट इज एक्चुअली ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर साइड। मतलब मान लो हम लोग यहाँ पे एक साइड सिलेक्ट करते हैं विच इज योर BC, ठीक है। वी आर सिलेक्टिंग BC ओवर हियर। इसको थोड़ा अच्छे से अगर मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊं शायद इट विल बी इजी फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साइड। Now in this case, if I'm going to draw a median from the opposite vertex, अभी BC को opposite vertex कौन सा है? It is A. From here, if I'm drawing another line over here, that is the median, and this median is going to divide this side BC into exactly two halves. तो अगर यहाँ पे मैंने D बनाया इस point को, then I can say that BD is equal to DC. You can say that this line AD has, the statement can be written, AD has bisected BC. Another statement, BD is equal to DC. Done. Most important thing, and D is the midpoint of BC. तो ये 3 स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पे थ्रू दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी कैन ड्रॉ एज अ कंक्लूजन। तो यहाँ पे उसी तरह मैंने तो ड्रॉ किया फ्रॉम A टू BC, उसी तरह मैं चाहूँ तो बाकी वर्टिसेस से भी तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। आई कैन ड्रॉ माई मीडियंस फ्रॉम देयर। सो लेट मी ड्रॉ फ्रॉम C। C को ऑपोजिट कौन सा है वर्टेक्स, यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हो, दैट इज C से अगर मैंने ड्रॉ किया द साइड ऑपोजिट इज एग्जैक्टली AB। क्लियर। तो अभी अगर मेरे को यहां से और कुछ इंफॉर्मेशन निकालना हुआ, देन व्हाट विल आई से दैट BE इज इक्वल टू AE। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 3 मार्क्स दे दिया। सिमिलरली इफ आई एम ड्रॉइंग अनदर लाइन विच इज समवॉट लाइक दिस, कोई और कलर से ले लेते हैं, सपोज दिस वन। लेट मी ड्रॉ फ्रॉम द अदर वर्टेक्स, यहां से। Done. Now this particular line you can see over here that it has divided, अगर इसको F बनाया, this is equal to this, that is AF is equal to FC. Now अभी सब जगह में देख रहे हो हम लोगों ने 3 medians को draw किया, and exactly over here also the same thing has been mentioned that there are 3 medians in a triangle which can be drawn because the number of vertices is also 3 and they will all intersect at one particular point that is over here. चलिए हम लोग इसको O लिख देते हैं। So what is this O called? The point of intersection of all the 3 medians is actually the centroid. And अगर हम लोग centroid को ले ले यहाँ पे particularly, let us take the centroid O. यहाँ पे इस डायग्राम में it is O. अगर O को हम लोग ले ले over particular AD, O is the point on AD, and अगर मेरे को यहाँ पे रेशियो निकालना हुआ that is AO is to OD, then what is the ratio? The ratio is 2:1. इसका मतलब क्या है? That if I am drawing a centroid, then the centroid is exactly dividing the entire median, any median, वो चाहे कोई भी vertex से आप draw करो to the corresponding side or to the opposite side, you're drawing it, then the centroid is going to divide it exactly in the ratio 2:1. So this is the most important point और यही feature आप लोग के काम आएगा exactly in class 10 when you will be doing coordinate geometry. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप लोग कर रहे होंगे तो वहां पे रिफ्लेक्शन के लिए, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला के लिए वहां पे ये चीज बहुत जरूरी होगा। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड और ये चीज आपको रिवीजन के लिए भी काम आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अभी ऑल्टीट्यूड दिखाने के लिए इसके लिए भी मेरे को अभी एक और ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। सो लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल, थोड़ा मोटा बेस का बनाते हैं। डन। सपोज
यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं DEF. Now in this DEF you can clearly see over here कि मेरे को अगर altitude draw करना है, I need to be very clear about the concept of altitude. अभी altitude मतलब एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है फ्रॉम आइदर ऑफ द थ्री वर्टिसेस. अभी हम लोग के पास D भी है, E भी है, F भी है. आई कैन ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री वर्टिसेस टू द ऑपोजिट साइड. लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग का मीडियन में क्या था देख लेते हैं एक बार. मीडियन में हम लोग का मेन एम था दैट द ऑपोजिट साइड शुड बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. यही हम लोग का मेन एम था. बट ओवर हियर व्हाट इज आवर एम? Over here our aim is that जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे from D to the opposite side, it has to be a perpendicular. Most important thing, it has to be a perpendicular. तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं अभी. I draw it over here. So over here the altitude has been created and इसको altitude क्यों बोलेंगे? Because it is creating 90 degree with the opposite side from that particular vertex. उसी तरह मान लीजिए इसको हम लोग देते हैं P as the name. उसी तरह ड्रॉ करते हैं बाकी के altitudes. Suppose this is making 90 degree and according to me this makes 90 degree. Suppose अब मेरा डायग्राम इतना भी अच्छा नहीं है. Okay, so somehow by God's grace I got this marble for you, but I don't know. मैं normally भी अगर ड्रॉ कर पाऊंगी then I'll be able to draw like this or not. Anyways, तो देख लेते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 एग्जैक्टली ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किया हुआ है एंड लेट मी गिव द नेम्स P, Q एंड R. अभी ध्यान से देखो ओवर हियर व्हाट आर द ऑल्टीट्यूड्स. ऑल्टीट्यूड्स आर EQ एक ऑल्टीट्यूड है एंड देन DP इज अनदर ऑल्टीट्यूड एंड FR इज अनदर ऑल्टीट्यूड. अभी यहाँ पे अगर क्लियरली ध्यान से देखो दैट each of them when is landing on the opposite side it is creating an angle of 90 degree, so it is perpendicularly landing on the opposite side. तो कितने altitudes यहाँ पे हो गए हैं? It is 3 and यहाँ पे भी mention हो गया है that is a perpendicular drawn from the particular vertex and all the altitudes are concurrent. ये concurrent का meaning क्या है? Means they will intersect at one particular point. अगर मैं एक triangle के अंदर 3 altitudes draw करती हूँ वहां पे, then they are going to intersect each other at one particular point, and that point of concurrence or intersection over here has been called the orthocenter. तो ध्यान दीजिए एक बार, coming to the previous slide, the point of intersection of all the 3 medians has been referred to as your centroid, while when we are talking about the altitudes, it is the orthocenter. और एक चीज ध्यान में रहे that altitude will never bisect the side on which it is landing. ये गलतफहमी मत रखना. Altitude will never, let me write it down for you. Altitude will never bisect the side. उसका मेन एम क्या है? Only to be perpendicular to the opposite side. This is the main aim of the altitude और कुछ भी नहीं है. इसीलिए जब भी मीडियन ड्रॉ किया जाए या जब भी ऑल्टीट्यूड के बारे में बोला जाए, काइंडली डू नॉट मिक्स अप द कॉन्सेप्ट्स. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. Now next moving on to the other properties of the triangle. Now sum of all the angles of a triangle is always 180 degree. ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोग काफी लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. So still I will repeat myself that अगर 3 angles तुम लोग को दिए गए हैं, तुम लोग को अगर 2 angles दिए हैं उसमें से you have to find the third angle, then you have to take it into consideration of taking the sum of the 2 angles whose value have been given and 180 से माइनस करो तो थर्ड एंगल का वैल्यू मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पे हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल कैसे ना, इफ यू जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर, अगर मान लो कि ये 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स भी दिए गए हैं, मान लो इन तीनों साइड में से किसी एक साइड को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दी. सपोज आई एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर साइड. So initially क्या था इसका लेबलिंग? Suppose A, B, C, now it goes up to D. Now if I take exterior angle, तो यहाँ पे exterior angle कौन सा है? The exterior angle is this one. If this is the exterior angle, then it is exactly equal to the sum of opposite interior angles. अभी ये वाला जो एंगल है ये इसको एडजेसेंट है
and is actually supplement of this. Means अगर मेरे को यहाँ पे डालना हुआ that ABC plus CBD, ये दोनों एंगल को मिलाने से आई बी गेटिंग 180 डिग्री। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट एंगल ABC इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल CBD, दिस एक्सटीरियर एंगल। लेकिन मेरे को अगर इसका वैल्यू निकालना हुआ देन हाउ विल आई डू दैट? इट इज एक्चुअली इक्वल टू द सम ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल्स, एंगल A एंड एंगल C। ठीक, तो अभी देखते हैं हाउ टू फाइंड इट आउट, कैसे वो चीज प्रूव होता है। लेट अस हैव अ लुक। अभी अगर ध्यान से देखो, देन sum of all the angles of triangle A, B, C सबका आ जाता है 180 डिग्री। Now if I take only angle A plus angle C, it is equal to 180 डिग्री minus angle B। अभी ये जो 180 डिग्री ये वाला फिगर अगर खाली देखो, 180 डिग्री माइनस एंगल B यानी माइनस दिस पर्टिकुलर एंगल, इट विल गिव यू विच एंगल? ध्यान से अगर देखो तो ये एंगल तुमको मिलेगा, और यही एंगल का वैल्यू तो है यहाँ पे A प्लस C। इसका वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो एज 180 माइनस B और एज A प्लस C। सो दैट्स व्हाई दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मान लो अभी एग्जैक्टली मैंने अगर दूसरे साइड्स को भी ऐसे ही एक्सटेंड किया होता, लाइक दिस ऐसे मैंने अगर एक्सटेंड किया, देन फॉर दिस ऑल्सो इसका वैल्यू आ जाएगा एंगल B प्लस एंगल C, और इसका वैल्यू आपका आ जाएगा एज एंगल A प्लस एंगल B। गॉट इट? ऐसे ही आपका कैलकुलेशन होगा अबाउट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रायंगल। आई होप दिस थिंग हैज बीन क्लियर टू यू। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अदर कोरोलरीज और एसोसिएटेड विद द ट्रायंगल। अ ट्रायंगल कैन हैव ओनली वन राइट एंगल, सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल प्लस A सपोज प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों में से कोई एक जन भी अगर 90 होता है तब तो हो गया भाई, ये थर्ड वाला मिलने से इट विल बी 180 डिग्री प्लस समथिंग। तो इट डजंट होल्ड ट्रू एज पर द रूल ऑफ ट्रायंगल दैट सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज 180। इसीलिए सिर्फ एक ही राइट एंगल यहाँ पे हो सकता है। A triangle cannot have more than one obtuse angle। ठीक है, एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब what do we address as the obtuse? Something which is greater than 90 degree. If a particular angle is greater than 90 degree, then it is called obtuse angle. मान लो अगर एक एंगल तुम लोग का 90 डिग्री है, then the other two angles are complementary. What is the meaning of complementary? Complementary means that if two angles together added up and they give you the sum of 90 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल देख लो, 90 प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तीनों एंगल में से एक एंगल 90 है। तो फिर बाकी के दो को देख लेते हैं एक बार। सो A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री विच इज गिविंग यू 90 डिग्री। हो गया काम, मेरा तो काम हो गया यहाँ पे। सो नाउ इट इज वेरी मच क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। Now coming down to in every triangle at least two angles will be acute। जैसे भी हो वो लोग acute होंगे, क्योंकि acute होंगे तभी जाके तुम लोग को एक proper 180 डिग्री मिलेगा if you add all three। If two angles of a triangle are equal to the two angles of another triangle, then the third angles will also be equal। देख लेते हैं यहाँ पे what do they want to say from this statement। दो ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। दे आर सेइंग सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 and 6। So according to them, if angle 1 is equal to angle 4, angle 2 is equal to angle 5, okay, then angle 3 will be equal to angle 6। If two angles are already equal of these two triangles, then the third angle has to be equal। So these are the corollaries which have been associated with the particular triangle। Now अभी हम लोग यही सब चीज जो हम लोग यहाँ पे देख लिए अभी तक, प्रॉपर्टीज, ऑल्टीट्यूड, मीडियन, देन इससे पहले साइड्स एंड एंगल्स का रिलेशन, सब कुछ हम लोग देख लिए थे। तो अभी वो सबका रिलेशन कैसे है हम लोग के इस चैप्टर से। नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में ये चीज क्या है डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे। ओके